Hello, students. Today we are going to read the poem on Killing a Tree by G. Patel from your book Beehive. In this poem, the poet considers the tree as a living organism. According to the poet, it has the right to live like any other creatures, but the man is killing it with utmost cruelty and callousness. This poem indirectly gives out a strong idea that trees are our lifeline, so they must not be killed. The poet instructs how a tree is killed, but actually he means its opposite. It implies that a person shall be a murderer if he kills it this way. He says that a knife will not do harm to a tree. At last, the poet conveys that if the tree is killed, it must be uprooted completely. Stating this, the poet taunts the people for cutting the trees. Now, starting with the first stanza of the poem, it takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. Okay, to kill a tree is not an easy job. Okay, it takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. What is the meaning of jab? Sudden rough blow. ओके जब हम नाइफ से रफली उस पे अटैक करते हैं ट्री पे, दैट इज अ जैब. नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. तो स्टार्टिंग में ही पोइट ये बता रहा है कि ट्री को किल करना ये कोई इजी जॉब नहीं है, इसको टाइम लगता है. इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री. ठीक है, अगर हम सोचते हैं कि एक नाइफ के बार से हम इसको खत्म कर सकते हैं तो ये नहीं होता. इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. ओके, तो जो प्लांट है, जो ट्री है, वो बहुत टाइम लेके अर्थ को कंज्यूम करके बड़ा होता है. पहले सीड से जर्मिनेट होता है, सैपलिंग होता है, फिर धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होती जाती है. तो ये एक स्लो ग्रोथ है और स्लोली स्लोली ये अर्थ को कंज्यूम करता है, तब जाके ये ट्री बनता है. कंज्यूम मीन्स टू यूज अप. ओके, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. क्रस्ट मीन्स टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. ओके, तो ये सॉइल में से, अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर में से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेता है. ओके, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर. और बहुत सालों तक सनलाइट, एयर और वाटर लेता है. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स. ओके, तब इसकी लेप्रस हाइड मीन्स स्किन, लेप्रस मीन्स डिसकलर्ड. ओके, तो इसकी जो बार्क होती है, जो इसकी स्किन होती है, वो डिसकलर्ड होती है, अगली लुकिंग भी होती है. ओके, ये लेप्रस वर्ड लेप्रेसी से आया है. लेप्रेसी इज अ डिजीज, स्किन डिजीज. ओके, तो उसकी बार्क भी, उसकी स्किन भी ट्री की with many years of sunlight, okay, it becomes discolored. ओके, तो जो इसकी जो डिसकलर्ड बार्क होती है, हाइड होती है, उसमें से लीव्स स्प्राउट करते हैं आफ्टर years of sunlight, air and water. Now moving to second stanza of the poem. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. So, what is the meaning of hack? Hack means to cut. Okay, cut roughly by striking heavy blows. So, just by striking heavy blows to cut it, or chop. Chop means to cut into pieces. Okay, hack means cut, chop means cut into pieces. Same thing. So, hack and chop, but this alone won't do it. इससे कोई फायदा नहीं होगा. It will not kill the tree. ओके, नॉट सो मच पेन विल डू इट. इतनी पेन से ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता. ट्री इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग. द ब्लीडिंग बार्क विल हील. द ब्लीडिंग बार्क. Note the use of alliteration here. Bleeding bark. Both the words are starting with the same consonant letter B. Okay, the bleeding bark will heal
and from close to the ground will rise curled green twigs. Now, the bleeding bark here conveys two meaning. First, the bleeding bark means the tree is in pain. It is bleeding. What is the meaning of bark? Bark means the outer hard covering. Okay, तो जो स्किन होती है ट्री की तो वो ब्लीड कर रही है. ठीक है. इट what does it shows? The tree is in pain. And another meaning is when we cut a tree, it releases a liquid called sap. Okay, that the flowing out of liquid has been referred as bleeding tree. Okay, so the bleeding bark will heal. Heal means to recover. Okay, so it will not do any harm to the tree just by hacking and chopping. And from close to the ground will rise curled green twigs, miniature buffs, which if unchecked will expand again to former size. So, and from close to the ground will rise curled green twigs. Twigs means thin branches. ओके, तो चाहे हम उसको चॉप करें, ठीक है, उसको कट करने की कोशिश करें, उसको कोई कट दें, फिर भी बहुत जल्दी वहाँ से दोबारा से छोटी टहनियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी ग्रीन कलर की, कर्ल्स ट्विस्ट हुई. ठीक है. मिनिएचर मीन्स वेरी टाइनी, वेरी स्मॉल. बॉफ्स मीन्स ब्रांचेस. ओके, और उसकी ब्रांचेस निकलेंगी विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज. अगर उसको दोबारा से कट नहीं किया गया और वो अनचेक्ड रही, दे विल एक्सपैंड अगेन टू अर्लियर साइज. इट विल अगेन grow to a full tree. Now next answer. No, the root is to be pulled out. Note the use of no here. Okay, the poet loudly says no by laying stress on the fact that the simple blow of knife or axe cannot kill a tree. Killing a tree is a long process. Okay, no, the root is to be pulled out of the anchoring earth. Anchoring earth, एंकर का मीनिंग होता है टू होल्ड समथिंग. ओके, तो बांध के रखना. जैसे अर्थ ने रूट्स को अपने साथ बांध के रखा हुआ है, रूट्स को अपने अंदर होल्ड करा हुआ है. एंड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट. ओके, तो इसको मारने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? द रूट इज टू बी पुल्ड आउट. ओके, ट्री को रूट से खींचना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा. कहाँ से? आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. अर्थ के अंदर से उसको बाहर निकालना पड़ेगा. अर्थ जिसने रूट्स को अच्छी तरह एंकर करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है. इट इज टू बी रोप्ड. ट्री पे इसके लिए पहले ट्री के गिर्द रोप बांधी जाएगी, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग. उसको टाई करा जाएगा रोप से. देन इट इज टू बी पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, ब्रोक आउट. स्नैप्ड आउट मीन्स ब्रोक आउट और पुल्ड आउट एंटायरली. सारे ट्री को ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है. उसको रूट से पुल्ड आउट करना पड़ेगा. आउट फ्रॉम द अर्थ केव. वाई इनसाइड ऑफ द अर्थ हैज़ बीन कॉल्ड अ केव? क्योंकि रूट्स बहुत अंदर तक फैली हुई होती हैं अर्थ के अंदर. ओके, तो उसको अर्थ की उस केव से, इनसाइड ऑफ द अर्थ से बाहर निकालना, खींचना पड़ेगा, बड़ा फोर्स लगेगा. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड. जब हम ऐसे ट्री को बाहर निकालेंगे विद रूट्स तो उसकी स्ट्रेंथ है वो बाहर आ जाती है. इट इज शोन आउटसाइड. क्या स्ट्रेंथ? उसकी रूट्स. द सोर्स वाइट एंड वेट. तो सोर्स जो उसकी न्यूट्रिशन का सोर्स है, जो ट्री की स्ट्रेंथ का सोर्स है, कौन? रूट्स. दे आर वाइट एंड वेट. वो वाइट हैं और वेट हैं. ओके, note the use of alliteration here, white and wet, W consonant. The most sensitive hidden for years inside the earth. ये कौन सा पार्ट है? सबसे डेलिकेट पार्ट है
जो बहुत सालों तक धरती के अंदर छुपा हुआ था। कौन? रूट्स ऑफ द ट्री। तो उसके प्रोसेस में ट्री को किल करना का प्रोसेस इतना इजी नहीं है, तो इस तरह उसको रोप से बांधेंगे, पुल करेंगे, पूरी स्ट्रेंथ यूज करेंगे तो ट्री को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इस प्रोसेस में जो उसकी रूट्स हैं, जो उसकी मेन स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो उसके पूरे न्यूट्रिशन का सोर्स है, वो बाहर आ जाता है। ओके, देन द मैटर ऑफ स्corching एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, browning and hardening, twisting, withering, and then it is done. Okay, so when it is pulled out, then it is kept for scorching and chalking. Scorching means to burn. Okay, to burn in the sun, and then choking. ओके, इन सन एंड एयर, उसको सन में रखा जाता है, एयर से एक्सपोज किया जाता है, तो इसकी स्कोचिंग होती है, इसकी चोकिंग होती है। चोकिंग मीन्स टू ब्लॉक ब्रीदिंग। ओके, तो जब इसको सन में रखा जाता है, ओपन में बहुत दिनों तक छोड़ दिया जाता है, तो इसका भी जो सोर्स है उससे उसका लिंक टूट चुका है, इसके जहाँ से इसको न्यूट्रिशन मिलता है, तो इसलिए इट हैज स्टॉप्ड ब्रीदिंग, नाउ इट इज नो मोर लिविंग। ओके, इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, तो इसके कलर में चेंज होता है और ये और ज़्यादा इसकी वुड, इसकी ट्रंक हार्ड होती है, ट्विस्ट होती है, मतलब इसकी शेप चेंज हो जाती है। विदरिंग, ओके, ये इसमें ड्राई हो जाती है और भी। एंड देन इट इज डन, इट इज डन मतलब किलिंग इज डन, तब जाके ट्री मरता है। ओके, सो वी हैव सीन that killing a tree is not an easy process, it is a very lengthy process। तो मतलब पोइट ये कहना चाहता है कि ट्री किन किन पेन्स के अंडर गो होता है। एंड कटिंग ऑफ ट्री के लिए पोइट ने किलिंग वर्ड यूज करा है, ये बताने के लिए कि वी ह्यूमन बींग्स आर मर्डरर्स। ओके, सो वी मस्ट स्टॉप cutting or killing trees, and another hidden message is there also, that is we must be strong and steady like a tree, ताकि छोटे मोटे अगर हमारे लाइफ में कोई चैलेंजेस आते हैं, ट्रबल्स आते हैं, we must stay strong like tree। Okay, so that was your beautiful poem on killing a tree, so please watch it। Hello students, today we are going to read the poem on killing a tree by G. Patel from your book Beehive। In this poem, the poet considers the tree as a living organism. According to the poet, it has the right to live like any other creatures, but the man is killing it with utmost cruelty and callousness. This poem indirectly gives out a strong idea that trees are our lifeline, so they must not be killed. The poet instructs how a tree is killed, but actually he means its opposite. It implies that a person shall be a murderer if he kills it this way. He says that a knife will not do harm to a tree. At last, the poet conveys that if the tree is killed, it must be uprooted completely. Stating this, the poet taunts the people for cutting the trees. Now, starting with the first stanza of the poem, it takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. Okay, to kill a tree is not an easy job. Okay, it takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. What is the meaning of jab? Sudden rough blow. Okay, जब हम नाइफ से रफली उस पे अटैक करते हैं ट्री पे, दैट इज अ जैब। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। तो स्टार्टिंग में ही पोइट ये बता रहा है कि ट्री को किल करना
ये कोई इजी जॉब नहीं है, इसको टाइम लगता है, इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। ठीक है, अगर हम सोचते हैं कि एक नाइफ के बार से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं तो ये नहीं होता। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। ओके, तो जो प्लांट है, जो ट्री है, वो बहुत टाइम लेके अर्थ को कंज्यूम करके बड़ा होता है। पहले सीड से जर्मिनेट होता है, सैपलिंग होता है, फिर धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होती जाती है। तो ये एक स्लो ग्रोथ है और स्लोली स्लोली ये अर्थ को कंज्यूम करता है, तब जाके ये ट्री बनता है। कंज्यूम मीन्स टू यूज अप। ओके, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, क्रस्ट मीन्स टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ओके, तो ये सॉइल में से, अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर में से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेता है। ओके, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, और बहुत सालों तक सनलाइट, एयर और वाटर लेता है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। ओके, तब इसकी लेप्रस हाइड मीन्स स्किन, लेप्रस मीन्स डिसकलर्ड। ओके, तो इसकी जो बार्क होती है, जो इसकी स्किन होती है, वो डिसकलर्ड होती है, अगली लुकिंग भी होती है। ओके, ये लेप्रस वर्ड लेप्रेसी से आया है। लेप्रेसी इज अ डिजीज, स्किन डिजीज। ओके, तो उसकी बार्क भी, उसकी स्किन भी ट्री की with many years of sunlight, okay, it becomes discolored। ओके, तो जो इसकी जो डिसकलर्ड बार्क होती है, हाइट होती है, उसमें से लीव्स स्प्राउट करते हैं आफ्टर years of sunlight, air and water। Now moving to second stanza of the poem. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. So, what is the meaning of hack? Hack means to cut. Okay, cut roughly by striking heavy blows. So, just by striking heavy blows to cut it, or chop. Chop means to cut into pieces. Okay, hack means cut, chop means cut into pieces. Same thing. So, hack and chop, what this alone won't do it. इससे कोई फायदा नहीं होगा। It will not kill the tree। ओके, नॉट सो मच पेन विल डू इट, इतनी पेन से ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्री इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग। द ब्लीडिंग bark will heal, the bleeding bark। Note the use of alliteration here, bleeding bark, both the words are starting with the same consonant letter B। Okay, the bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs। Now the bleeding bark here conveys two meaning. First, the bleeding bark means the tree is in pain, it is bleeding। What is the meaning of bark? Bark means the outer hard covering। Okay, तो जो स्किन होती है ट्री की, तो वो ब्लीड कर रही है। ठीक है, इट, what does it shows? The tree is in pain। And another meaning is, when we cut a tree, it releases a liquid called sap। Okay, that the flowing out of liquid has been referred as bleeding tree। Okay, so the bleeding bark will heal, heal means to recover। Okay, so it will not do any harm to the tree just by hacking and chopping। And from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size। So, and from close to the ground will rise curled green twigs। Twigs means thin branches। ओके, तो चाहे हम उसको चॉप करें, ठीक है, उसको कट करने की कोशिश करें, उसको कोई कट दें, फिर भी बहुत जल्दी वहाँ से दोबारा से छोटी टहनियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी, ग्रीन कलर की, कर्ल्स ट्विस्ट हुई। ठीक है, मिनिएचर मीन्स वेरी टाइनी, वेरी स्मॉल, बॉफ्स मीन्स ब्रांचेस। ओके, और उसकी ब्रांचेस निकलेंगी, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज।
अगर उसको दोबारा से कट नहीं किया गया और वो अनचेक्ड ट्री, दे विल एक्सपेंड अगेन टू अर्लियर साइज, इट विल again grow to a full tree. Now next answer, no, the root is to be pulled out. Note the use of no here. Okay, the poet loudly says no by laying stress on the fact that the simple blow of knife or axe cannot kill a tree. Killing a tree is a long process. Okay, no, the root is to be pulled out of the anchoring earth. Anchoring earth, एंकर का मीनिंग होता है टू होल्ड समथिंग. ओके, तो बांध के रखना, जैसे अर्थ ने रूट्स को अपने साथ बांध के रखा हुआ है, रूट्स को अपने अंदर होल्ड करा हुआ है. एंड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट. ओके, तो इसको मारने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? द रूट इज टू बी पुल्ड आउट. ओके, ट्री को रूट से खींचना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा. कहाँ से? आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, अर्थ के अंदर से उसको बाहर निकालना पड़ेगा. अर्थ जिसने रूट्स को अच्छी तरह एंकर करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है. इट इज टू बी रोप्ड, ट्री पे, इसके लिए पहले ट्री के गिर्द रोप बांधी जाएगी, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग, उसको टाई करा जाएगा रोप से. देन इट इज टू बी पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, ब्रोक आउट. स्नैप्ड आउट मीन्स ब्रोक आउट. और पुल्ड आउट एंटायरली, सारे ट्री को. ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है. उसको रूट से पुल्ड आउट करना पड़ेगा, आउट फ्रॉम द अर्थ केव. वाई इनसाइड ऑफ द अर्थ हैज बीन कॉल्ड अ केव? क्योंकि रूट्स बहुत अंदर तक फैली हुई होती हैं अर्थ के अंदर. ओके, तो उसको अर्थ की उस केव से, इनसाइड ऑफ द अर्थ से बाहर निकालना, खींचना पड़ेगा, बड़ा फोर्स लगेगा. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, जब हम ऐसे ट्री को बाहर निकालेंगे विद रूट्स, तो उसकी स्ट्रेंथ है वो बाहर आ जाती है. इट इज शोन आउटसाइड. क्या स्ट्रेंथ? उसकी रूट्स. द सोर्स वाइट एंड वेट, तो सोर्स जो उसकी न्यूट्रिशन का सोर्स है, जो ट्री की स्ट्रेंथ का सोर्स है, कौन? रूट्स. दे आर वाइट एंड वेट, वो वाइट हैं और वेट हैं. ओके, note the use of alliteration here, white and wet, W consonant. The most sensitive hidden for years inside the earth. ये कौन सा पार्ट है? सबसे डेलिकेट पार्ट है, जो बहुत सालों तक धरती के अंदर छुपा हुआ था. कौन? रूट्स ऑफ द ट्री. तो उसके प्रोसेस में, ट्री को किल करना का प्रोसेस इतना इजी नहीं है. तो इस तरह उसको रोप से बांधेंगे, पुल करेंगे, पूरी स्ट्रेंथ यूज करेंगे, तो ट्री को हम बाहर निकाल सकते हैं. तो इस प्रोसेस में जो उसकी रूट्स हैं, जो उसकी मेन स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो उसके पूरे न्यूट्रिशन का सोर्स है, वो बाहर आ जाता है. ओके, देन द मैटर ऑफ स्corching एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, browning and hardening, twisting, withering, and then it is done. Okay, so when it is pulled out, then it is kept for scorching and chalking. Scorching means to burn. Okay, to burn in the sun. And then choking. ओके, इन सन एंड एयर, उसको सन में रखा जाता है, एयर से एक्सपोज किया जाता है, तो इसकी स्कोचिंग होती है, इसकी चोकिंग होती है. चोकिंग मीन्स टू ब्लॉक ब्रीदिंग. ओके, तो जब इसको सन में रखा जाता है, ओपन में बहुत दिनों तक छोड़ दिया जाता है, तो इसका भी जो सोर्स है उससे उसका लिंक टूट चुका है, इसके जहाँ से इसको न्यूट्रिशन मिलता है. तो इसलिए इट हैज स्टॉप्ड ब्रीदिंग, नाउ इट इज नो मोर लिविंग. ओके, इन सन एंड एयर. ब्राउनिंग, हार्डनिंग, तो इसके कलर में चेंज होता है, और ये और ज़्यादा इसकी वुड, इसकी ट्रंक हार्ड होती है, ट्विस्ट होती है, मतलब उसकी शेप चेंज हो जाती है. विदरिंग, ओके, ये इसमें ड्राई हो जाती है और भी
and then it is done. It is done मतलब killing is done, तब जाके tree मरता है. Okay, so we have seen that killing a tree is not an easy process. It is a very lengthy process. तो मतलब पोइट ये कहना चाहता है कि ट्री किन किन पेन्स के अंडर गो होता है. एंड कटिंग ऑफ ट्री के लिए पोइट ने किलिंग वर्ड यूज करा है ये बताने के लिए कि वी ह्यूमन बीइंग्स आर मर्डरर्स. ओके, सो वी मस्ट स्टॉप cutting or killing trees. And another hidden message is there also, that is we must be strong and steady like a tree. ताकि छोटे मोटे अगर हमारे लाइफ में कोई चैलेंजेस आते हैं, ट्रबल्स आते हैं, we must stay strong like tree. Okay, so that was your beautiful poem on killing a tree. So please watch it.